Good morning, all the students and respected teachers of Jagannath International School. On the behalf of Paramhans Vidyapeeth, I would like to welcome all of you. Paramhans Vidyapeeth provide career counseling, psychometric assessment, career booster program, and admission guidance for abroad and Indian universities. I am Urvi Agarwal, your friend, host, and counselor. I have with me Miss Monica ma'am. She is going to be tell you about all the stream, how you have to do the stream selection, what are the skills requirements for future, and everything you should know. So whatever you have any question, you can send us send us on chat box. Also, I would like to the management of Jagannath International School, especially Ritu Agarwal ma'am, who provided us this opportunity again to give a workshop to Jagannath International School students. Uh, so this workshop is going to provide you into two sections. First section includes what are the things a student should look up before planning any career or before any choosing any stream for their coming sessions, coming class. And the second section will be include our free career library, Google form, and through the Google form, the student can reach to us for their inquiries and doubts. Over to you, ma'am. Okay, fine. So good morning, everyone who is present in this workshop. And as mentioned by Urvi, thank you to the management and Ritu Agarwal ma'am of Jagannath International School, who has given us the opportunity to interact with the lovely students once again. In our last session, what we have covered is totally different thing, and what we're going to cover today is specifically for the 9th and 8th graders. प्रिपरेटरी फेज जो भी हम लोग अपनी लाइफ के अंदर आज स्टडीज कर रहे हैं, उसका 101% हमारा जो आउटकम होने वाला है, ये है हमारा प्रिपरेटरी फेज, कि आगे चल के हम जितनी भी फर्दर स्टडीज अभी करेंगे या हम करते आए हैं, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स अब हमें दिखने शुरू हो जाएंगे. बिकॉज व्हाट वी हैव डन इज, हमने अपनी अभी तक फाउंडेशन रेडी करा है, एंड उस फाउंडेशन को यूज करके अभी हम अपने फ्यूचर करियर प्लान्स की तरफ जाने वाले हैं. आई वुड नॉट रिकमेंड कि आज आप ये सोचें कि मेरे लिए कल क्या करियर बेहतरीन हो सकता है या होगा. हम आज इस बारे में बात करेंगे कि किसी भी तरीके से जब हम 8th एंड 9th स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो किस तरह से करियर प्लानिंग हमें कहाँ कहाँ इंटरवीन करने की जरूरत है, कहाँ पे हमें लगता है कि हमें एक स्टेप बैकवर्ड लेना है या एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है. We are going to discuss about those things today. So आप सभी बच्चे, I would suggest कि आपने, you are very fortunate कि आप लोग इस स्कूल में हैं जिस स्कूल ने इस बारे में सोचा, and we are very fortunate कि हम आपके उस करियर पाथवे के अंदर, उस रास्ते के अंदर आपके साथी बनेंगे. We are going to guide you, give you guidance about कि actually हमें कहाँ कहाँ पे गलतियां हम करते हैं. अगर किसी को करियर गाइडेंस नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता है, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हम उन प्रॉब्लम्स को जो फ्यूचर में आप फेस कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को अभी एलिमिनेट कर दें, तो आपके लिए रास्ता थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा, आपके लिए अपने एम तक पहुंचना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपके स्ट्रगल्स इजी हो जाएंगे और आप फोकस्ड वे में आगे बढ़ पाएंगे. दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस थिंग. हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम आपको ये बोले कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको ये मिला है अपॉर्चुनिटी. हम ये भी बात कर रहे हैं कि हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर प्लान्स के लिए. Okay, so as mentioned by Urvi ma'am, this is the whole idea about Paramhans Vidyapeeth. उन्होंने आपको इसका introduction दे दिया है, so I'm not going to repeat the same. So basic problem we are facing in today's life, हम अपने करियर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं. अभी हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी क्लास में हैं, इवन आप अपने सीनियर्स के साथ भी बातचीत करते हैं, तो एक बेसिक प्रॉब्लम सुनने में आता है
कि हम अपने करियर डिसीजंस को मोस्टली गेस वर्क के ऊपर बेस्ड रखते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कहा तो हम ये रिकमेंडेशन देते हैं, हमारे टीचर्स ने हमें कहा तो हम उसको आगे परस्यू करने की सोचते हैं, मेरे फ्रेंड ने ये करने का सोचा है तो मैं उसको करने की सोच रहा हूँ। तो इट्स टोटली अ गेस वर्क जिसके ऊपर बेस्ड हम अपने उस फ्यूचर को लगाने वाले हैं जिसके लिए अभी तक हम फाउंडेशन बनाते आए हैं। सो आज के डेट में अगर हम बात करें, ईच एंड एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन। हम अगर किसी ब्लड टेस्ट के लिए भी जाते हैं तो डॉक्टर आपको देख के नहीं बोल देता है कि आप आयरन अपना रेज कर दीजिए बिकॉज आपका हीमोग्लोबिन मुझे लगता है कम है। हम कब लेना शुरू करते हैं मल्टीविटामिन या आयरन टैबलेट्स? जब डॉक्टर हमारी रिपोर्ट चेक करता है और उसे डायग्नोज करने के बाद लगता है कि मुझ में हीमोग्लोबिन की कमी है। बेसिकली ये हर उस चीज के साथ होता है जहां पे हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। ह्यूमन एक अगर हम बात करें इवॉल्व हुआ है, एक हमारे साइंटिफिक टूल्स इवॉल्व हुए हैं, तो क्यों नहीं हमने इसके अंदर एक साइंटिफिक एस्पेक्ट डालने की कोशिश करी है। जब हम अपनी रिपोर्ट कार्ड, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हैं तो वो क्या होता है, वो आपकी असेसमेंट होती है अबाउट योर अकेडमिक्स। इवन अगर हम लास्ट फ्यू ईयर से देखें, जब से सीसीई पैटर्न आया था, आप लोग शायद उस समय इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन जब सीसीई पैटर्न आया था तो वो भी ये था कि हमारी होलिस्टिक अप्रोच कैसी है, हम मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी कैसे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी असेसमेंट रिपोर्ट बनती है, हमारी एकेडमिक रिपोर्ट बनती है। तो क्यों नहीं जब हम अपने करियर की बात करते हैं तो उसको हम गेस वर्क पे क्यों डालते हैं, वहां पे हमारी असेसमेंट या फिर सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन की बात हम क्यों नहीं करते हैं। तो जब आज हमारे पास जो बच्चे इतने प्यारे बैठे हैं, डेफिनेटली यू आर स्पेयरिंग टाइम ताकि आप अपने करियर के डिसीजंस को और बेहतर बना सकें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि अपनी लाइफ को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चलाने की कोशिश करें। हम अपनी लाइफ को गेस वर्क के ऊपर बेस्ड ना रखें टू गेट गुड फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन फ्यूचर। जब हम अपने इस करियर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतने इमोशंस लगा रहे हैं, वी आर सेक्रीफाइसिंग, बहुत सारी चीजें हम सेक्रीफाइस करते हैं। एग्जाम डेज है, हमें घूमने नहीं जाना है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, हमारी स्टडीज हर्डल नहीं होनी चाहिए, हम मैरिजेस को या फैमिली फंक्शंस को अवॉइड करते हैं। फॉर व्हाट? टू गेट गुड ग्रेड्स। तो उतनी ही एफर्ट हम अपनी जो हार्ड स्किल्स है जितना उसके ऊपर लगा रहे हैं, हम अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर क्यों नहीं लगाते। हम इतनी एफर्ट जब लगा रहे हैं, अपने इमोशंस, डेडिकेशन, पेरेंट्स का मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर ऐसी किसी चीज को क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं जिसकी वजह से हमें और ज्यादा बेहतरीन आउटपुट मिले, जो और ज्यादा हमें हमें एम्बिशन, हमारे एम की तरफ ले जाने में और साइंटिफिक तरीके से हेल्प करे। सो वी आर टोटली इनटू द प्रॉब्लम ऑफ गेस वर्क, जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। और इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं, वी रियली नीड टू हैव अ सॉल्यूशन विद दैट। तो हमें इसका एक ही सॉल्यूशन दिखता है, अर्ली करियर प्लानिंग। जब हम बात करते हैं प्रिपरेटरी फेज की, तो प्रिपरेशन किस बात की? प्रिपरेशन करनी है, हमने अपने करियर प्लानिंग को थोड़ा अर्ली स्टेज से स्टार्ट करना है। हाउ? आज जब आप, मुझे पता है कि बहुत ही ऐसी क्लास के बच्चे हैं जहां पे मैं अगर आपको करियर्स के नाम लेने लगूंगी, सो यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज। रीजन बीइंग कि हम थोड़े फ्यूचरिस्टिक होने चाहेंगे। आज हम, होता क्या है कि प्रेजेंट सिनेरियो में कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा ग्लोबल इकोनॉमिक अगर हम बात करें तो उसमें कहाँ ग्रोथ दिख रही है, हम अपनी स्टडीज को फोकस करने लग जाते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पे। तो जब हम बात करेंगे अर्ली करियर प्लानिंग की, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम बात करेंगे अगले 5 से 10 साल के बाद की। बिकॉज आज आप उस स्टेज में नहीं है जहां आपको अगले 1 या 2 साल के अंदर प्लेसमेंट में जाना है या करियर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। आपके लिए भी क्या जरूरी है, आपको देखना है कि फ्यूचर में कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एवोल्यूशन आने वाला है। इवन हम ये भी फोकस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में किन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर हमने इकिगाई पढ़ा हो, जापानीज एक वे है जिसमें जाना जाता है द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो जब हम पर्पस की बात करते हैं अर्ली करियर प्लानिंग के अंदर, हमें जानने की जरूरत है कि फ्यूचरिस्टिक होना इसमें कितना ज्यादा जरूरी है। So what is early career planning? What we are going to do, we are going to discuss how to set your goals in life
फॉर बेटर करियर गाइडेंस। हम कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रैंडम डिसीजंस कि आज हमने ये सोचा है इस तरह से बढ़ना है। उस प्लानिंग को पूरा गोल्स होने चाहिए कि मुझे वहां क्यों जाना है, रीजन। हमें सबसे पहले स्पेसिफिकली अपने आप से क्वेश्चन पुट अप करना है, क्यों क्यों करूं मैं ये। तो उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि मैं हूं कौन। बिकॉज जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, देन यू वोंट बी एबल टू ग्रो इन लाइफ। तो पहले अपने आप को जानना जरूरी है, अपने पोटेंशियल को जानना जरूरी है। देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोसीड इन योर लाइफ और सेट गोल्स फॉर योर फ्यूचर। अब प्रॉब्लम ये है कि हाउ कैन अर्ली करियर प्लानिंग हेल्प यू टू ग्रो। हमने अर्ली करियर प्लानिंग कर ली, मैंने आपको रीजन बता दिए कि आप कैसे ग्रो करेंगे। लेकिन और इन डेप्थ अगर हम इसकी बात करें, एक छोटा सा पौधा अगर हम लगाते हैं लाइफ के अंदर, अगर हमने देखा हो, तो जितना ज्यादा हम उसे मिट्टी के अंदर, खाद के अंदर या पानी की, धूप की पूरी मात्रा उसे मिलती है, वो उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करता है। किसी भी एक चीज की कमी रह जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको उसकी जो एक ब्यूटिफिकेशन और जो ग्रोथ होती है, उसका कलर होता है, उसमें आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो मुरझा जाता है अगर उसे ठीक चीज ना मिले टाइम पर। तो सिमिलरली हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। अगर हमें राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज ना मिले, राइट नॉलेज ना मिले, या फिर हमने राइट टाइम पे अपने स्किल्स को एनहेंस ना किया हो, तो हमारा जो एक छोटा सा पौधा अभी हमने लाइफ में लगाना शुरू किया है, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सिचुएशन रहेगी और हमें बाद में स्ट्रगल करना पड़ेगा। टू अवॉइड दो सिचुएशंस हम आज बात करेंगे कि अर्ली करियर प्लानिंग आप बच्चों के लिए स्पेसिफिकली फॉर द 8th एंड 9th ग्रेडर्स किस तरह से हेल्प करती है। उससे पहले जानना ये जरूरी है कि जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, एक गेस वर्क की, सो गेस वर्क में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेजर प्रॉब्लम आती है गेस वर्क के अंदर जब हम अपने फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स ने क्या किया, मेरे कजन ने क्या किया, हम इससे जुड़े हुए डिसीजन ले लेते हैं। हम पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और इस इंटरनेट ने, कोरोना ने, इन सब चीजों ने हमें आपस में बहुत ज्यादा पास ला दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जानना भी जरूरी है, वी डू हैव डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट मोटिवेटर्स, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। वी आर नॉट फोटोकॉपीज ऑफ ईच अदर। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ना अपनी लाइफ का बेटा, तो हमारे डिसीजन के अंदर हमारी यूनिकनेस दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि बिकॉज समवन एल्स इज टेकिंग दिस डिसीजन तो मुझे उसके साथ वैसा ही करना है। आप जब अपने स्कूल के अंदर भी आप देखें कि आप क्लास के अंदर अगर 30-40 स्टूडेंट्स हैं, तो आप अकेडमिकली भी एक लेवल पे नहीं होते हैं, एक सिंगल पार पे नहीं होते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर हम अपनी हॉबीज की बात करें, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी के लिए हो सकता है कि इसको रोबोटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो। सो वी डू हैव डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, डिफरेंट इंटरेस्ट पैटर्न्स। सो व्हाई एट द टाइम ऑफ चूजिंग अ करियर हम एक दूसरे की कॉपीज क्यों बनना चाहते हैं? वी आर डिफरेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें जो भी डिसीजन लेना है अपनी सेल्फ असेसमेंट के बाद लेना है। इफ समवन एल्स इज सेइंग यू कि आप ऐसे हैं, डोंट जस्ट फॉलो दैट थिंग। अपने आप को नोटिस करें कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मैं किस चीज के लिए पैशनेट हूँ, या फिर मेरी हॉबीज क्या है, मेरा इंटरेस्ट पैटर्न क्या है। एम आई पर्सन जिसको लिखना बहुत अच्छा लगता है या मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मे बी समवन इज अ ऑडिटरी लर्नर, उसे सुन के चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं, तो उसे कमांड कैसे लेनी है। समहाउ हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारा कमरा बिल्कुल क्लीन रहता है, then how can be I'm going to be equivalent to that person जो अपने कमरे को बिल्कुल खराब रखता है, अनऑर्गेनाइज्ड रहता है, क्लीनलीनेस की बात नहीं करता है। तो दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो ये धीरे 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 अपने आप को एनालाइज करने की एज है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको जो हेल्प कर सकते हैं वो आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। बिकॉज हम कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाते हैं व्हाइल टेकिंग डिसीजन। तो मैं पेरेंट्स से और टीचर से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव आज आप सब लोग घर पे हैं, मे बी योर पेरेंट्स आर ऑल्सो विद यू, अगर वो मुझे सुन रहे हैं कोई भी पेरेंट, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि बच्चों के लिए जजमेंटल ना हो कि बच्चा 6 साल का था और ये नहीं कर पाता था और आज वो 13 साल का हो गया, ये 14 साल का हो गया तो आज भी नहीं कर पाएगा।
इस फोबिक माइंड से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। ईच एंड एवरी ईयर अ चाइल्ड यूजुअली ग्रो, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, उसकी पर्सनालिटी चेंज होता है, उसका फिजिकल ऑरा चेंज होता है, उसके फ्रेंड्स चेंज होते हैं, उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो हर बार बच्चा कुछ डिफरेंट होता है। हम यूजुअली क्या करते हैं, बिकॉज टीचर के पास ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्यों होता है बच्चे के बारे में जजमेंट देने का, बिकॉज एवरी ईयर यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट टीचर्स। वो आपको उस एक साल के दायरे में ऑब्जर्व करती हैं और वो बताते हैं। बट पेरेंट्स समहाउ कभी कभी थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं। ओके, सो आई बिलीव अभी हमें शायद रिज्वाइन ना करना पड़े, रीजन बीइंग कि टाइम इज एक्सटेंडेड। सो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि पेरेंट्स के जजमेंटल होने की। सो हमारे घर पे भी जैसे यूजुअली होता है कि अगर मेरा छोटा भाई है और उससे उस एज ग्रुप में नहीं हो पा रहा है, तो हम भी उसके लिए वैसा माइंड सेट कर लेते हैं। अगर बड़ा भाई बहन है तो हम उसके लिए भी माइंड सेट कर लेते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वी डू हैव डिफरेंट कैलिबर्स, वी डू हैव डिफरेंट लाइकिंग्स। तो हमें एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत है। एंड बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ। ओके, सो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात आज नहीं करेंगे, बिकॉज पर्सनालिटी टाइप्स को समझना अपने आप में बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। मैं आपको एक छोटा छोटा सा जिस्ट दूंगी कि हम किस किस तरह की पर्सनालिटी टाइप्स कैरी करते हैं, सो दैट अगर आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन करने लगे तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए, आपको पता लग जाए कि हमें अपने पर्सनालिटी टाइप को किस तरह से समझने की जरूरत है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी बातों से सबको एकदम से दे कैन रिलेट टू द पीपल, दे कैन हैव जब वो किसी से बातचीत करते हैं तो अपने एनर्जी लेवल को हाई कर लेते हैं, अपने मन की बात खुल के सबसे कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो हर किसी के साथ बहुत ओपन नहीं हो पाते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम अपने लिए फ्यूचर करियर डिसीजंस की बात करते हैं, आज मैं इसके बारे में बहुत डेप्थ में नहीं बात करूंगी, रीजन बीइंग कि ये चीजें अभी आप इस एज ग्रुप में हैं, शायद थोड़ी बदल भी सकती हैं इन फ्यूचर, क्योंकि अगले 2-3 साल में आपको फ्रेंड सर्कल कैसा मिलता है, फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है, आप में भी कोविड पूरे सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, तो मे बी योर पर्सनैलिटी इज गोइंग टू चेंज विद टाइम। तो अभी इट्स नॉट अ राइट टाइम, लेकिन यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि पर्सनैलिटीज किस तरह की होती हैं। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो सेंसिंग होते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस से, हमारे हार्ट से, इमोशन से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इमोशनल वेलबींग जिनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कुछ डिफरेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं, वो किस तरह की गट फीलिंग पे बिलीव करते हैं। दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट कि वो इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे कर रहे हैं। दो तरह की पर्सनालिटीज, एक जो इमोशन और सेंसिंग के थ्रू चलते हैं, एक होते हैं जो इंट्यूशंस के साथ चलते हैं। तीसरी पर्सनालिटी जो कैरी करते हैं, डिसीजन हम कैसे ले रहे हैं, आर वी हैविंग माइंडसेट जो थिंकिंग, लॉजिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे हैं, जो हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, या फिर मेडिसिन की बात करें, या फिर हम फीलिंग और को कंसिडर ज्यादा करते हैं, या कंपैशनेट है, जैसे अगर हम एनजीओ की बात करें, सोशल वर्क की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें। सो दीज आर द करियर्स जहां पे आपको फीलिंग्स को समझना ज्यादा जरूरी है। आप वहां पे बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं हो सकते हैं। इफ योर फ्रेंड इज सफरिंग विद फीवर और उसको आपके नोट्स चाहिए, तो आप ये नहीं सोच सकते उस मोमेंट के ऊपर कि इसने काम अपना फिनिश क्यों नहीं किया ऑन टाइम। वहां पे यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग को कंसिडरेशन देना पड़ता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि एम आई ऑलवेज अ लॉजिकल काइंड ऑफ पर्सन, की नहीं, ये उसकी ड्यूटी बनती थी, उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन। तो हम अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं इन दीज सिचुएशंस, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू असेस अवरसेल्फ। लास्ट वन इज, हम इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, प्रेफरेंस फॉर ईदर टेकिंग इन इंफॉर्मेशन और मेकिंग डिसीजन, हम कैसे लेते हैं डिसीजंस को। हम जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं अपने डिसीजन जो लेते हैं, या फिर हम परसीविंग है, टेकिंग इन इंफॉर्मेशन, लोग जैसा कह देते हैं हम वैसा बनते हैं, या फिर अपने खुद के डिसीजन लेते हैं, खुद की जजमेंट करते हैं और खुद ही चीजों को ऑर्गेनाइज करना पसंद करते हैं, या हम लोगों के माइंड से चलते हैं जैसे मैंने बताया। तो ज्यादा इमोशनल होना
somehow हम इसको वीकनेस नहीं मानते हैं। When we talk about career guidance और career counseling, we do consider कि हर तरह की personality type carry करते हैं लोग, और वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपका स्ट्रेंथ एरिया है। We just need to understand कि मुझे अपने उस स्ट्रेंथ एरिया को कहाँ यूटिलाइज करना है। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर आपके सामने एक डिस्कस करूं, जस्ट फ्यू डेज बैक आई जस्ट हैव अ इंटरेक्शन विद अ गर्ल। तो उनके साथ बेसिक प्रॉब्लम था, शी वांट्स टू बी अ लॉयर, लेकिन लॉयर बनने के साथ साथ आई हैव रियलाइज्ड कि शी इज अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। और उन्होंने कहा कि मैं अपने डिसीजन मैम बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, एम्पैथेटिक हो जाती हूँ, आई हैव नो आइडिया कि मैं एक अच्छी लॉयर कैसे बनूंगी। तो वहां पे हमारे सामने क्या डिसीजन लेने की, उस समय गाइडेंस देने के लिए जब जरूरत होती है, तो हम कहाँ गाइडेंस दे सकते हैं, दैट यू कैन बी अ लॉयर, बट with these kind of strength areas, you can perform better in human rights, you can perform better for NGOs। तो आप अपने एम को भी कंसीडर करके चलें, और आप अपने उस स्ट्रेंथ एरियाज को हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं उसको भी कंसीडर करके चलें। सिमिलरली, हमारा इंटरेस्ट पैटर्न कैसा है, हम कहाँ पे काम करना पसंद करते हैं। एम आई अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे फिजिकल काम करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर जैसे मैंने बताया लॉजिकल थिंकिंग, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं चीजों को, या आई एम अ क्रिएटर काइंड ऑफ पर्सन। आर्टिस्टिक का मतलब, हम यहाँ पे जब करियर गाइडेंस की बात करते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिस्टिक कि जो सिर्फ आर्ट की तरफ जिसका इंक्लिनेशन हो, कि म्यूजिक सुनना पसंद है, डांस पसंद है, या फिर इस तरह की हॉबीज हैं। एनीवन हु इज हैविंग अ क्रिएटिव आइडिया इन देयर माइंड, हम बहुत इनोवेटिव हो जाते हैं जब हमें कलर्स की स्कीम के बारे में, इमोशंस के बारे में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बारे में, वी आर हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो हम एक क्रिएटिव है, इनोवेटिव आइडियाज की जब हम बात करते हैं। हम हेल्पर हैं जब हम सोशल की बात करते हैं, लोगों की हेल्प करना। जब हम लॉजिकल एंड हेल्पर जब हम बात करते हैं, तो ऐसे इंजीनियर्स जो कि सोशल, आप सोसाइटी में देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं, सो कुछ चीजें होती हैं जिनके इमोशनली आंसर्स निकलते हैं, और कुछ चीजों के साइंटिफिक आंसर्स निकलते हैं। तो आप सोशल हैं, लेकिन आप एक इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के साथ हैं, रियलिस्टिक स्किल्स के साथ हैं, देन यू कैन बी एन आर्मी मैन। आप आर्मी पर्सनल बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, तभी आप सोशलाइज कर पाएंगे ना। यहाँ सोशल का कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि आप सोशलाइज करते हैं, यहाँ पे सोशल का कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज एंटरप्राइजिंग। जब हम परसुएडर की बात करते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, लोगों को कन्विंस करना, उनको एक ओरिएंटेशन के साथ आगे बढ़ना, लीडरशिप क्वालिटी के साथ बढ़ना। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे में एंटरप्राइजिंग स्किल्स है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कन्वेंशनल। जब हम ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं, जो ऑफिस बेस में काम करना जिनको अच्छा लगता है, फाइनेंशियल ओरिएंटेशन में काम करना अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स की बात करें, डेटा एंट्रीज की बात करें, डेटा एनालिसिस की बात करें, बिग डेटा की बात करें, तो ऑल दीज जॉब्स नीड टू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग दिस। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो आपको एक पॉलिसी के स्ट्रक्चर में काम करना पड़ता है। आप वहां पे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के साथ अगर एक इंसान है, लेकिन वो कन्वेंशनल है, दैट पर्सन कैन बेटर फिट फॉर यूपीएससी। लेकिन आप कन्वेंशनल है और आपके पास एंटरप्राइजिंग स्किल्स नहीं है, तो और आप सोशल भी हैं, तो आप कुछ इस तरह का काम करना पसंद करेंगे जहां पे आपको लोगों के साथ डेटा के बारे में आप बात करें। जैसे आप आधार कार्ड का आज की डेट में काम देखते हैं, उस तरह का काम। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे सिटिंग जॉब पसंद है, या मुझे फिजिकल एस्पेक्ट में काम पसंद है, या मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं, मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि नहीं, कैन आई स्टैंड समवेयर कि जहां मैं बोल सकूं दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। अगर आप में वो चीजें नहीं है, देन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज की कमी है। और ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिनको हम ये ना मान के चलें कि ये मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। हमें ये मान के चलना है कि यू आर इनटू एन एप्रोप्रिएट एज, जहां पे हम इसमें अभी अपने आप को अपस्किल भी कर सकते हैं। हम छोटे छोटे मौके अपने हाथ से गवा देते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ आई एम गेटिंग अ चांस टू बिकम अ हेड गर्ल और अ हेड बॉय इन फ्यूचर, सो हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। If a teacher is saying you to organize an event in a school,
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से आई कैन अपग्रेड माई सेल्फ एज अ लीडर और मेरे एंटरप्राइजिंग स्किल्स एनहेंस होंगे. सो इनिशिएटिव्स लेना, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, ये जो 8th एंड 9th स्टैंडर्ड है अभी आपके लिए परफेक्ट है टू अंडरस्टैंड, आप रिलेट कर पाए कि करियर प्लानिंग में इस तरह की चीजें आपको कैसे हेल्प करेंगे टू ग्रो. आप आज सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं, अपने बारे में चीजें जानते हैं, एंड आपको लगता है मेरे एम्बिशन में ये अड़चन आ सकती है, एंड हाउ यू कैन रिलेट टू द थिंग कि जब हम बात करेंगे कि आप मुझे इस करियर में जाना है एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर करियर. So for that, by the end of this session, Urvi ma'am is going to give you a gist about the career library, जहां पे आप ये जान पाएंगे कि अगर ये मेरा करियर एम है, मुझे इसमें आगे परस्यू करना है, तो what kind of skills required for this particular career, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं. एंड somehow कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रखते और कंफ्यूजन बढ़ जाता है. For that we do have scientific assessment as well, जहां पे आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप करके आपके बारे में एक क्लियर पिक्चर निकल के आता है, सो दैट कि आपको पता रहे कि मेरे इंटरेस्ट पैटर्न्स क्या हैं, मेरे पर्सनालिटीज क्या है, मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, ये सब चीजें आपको पता लगेंगी. एंड टू गेट दैट आइडिया, आप वेबसाइट पे जाके एक रिपोर्ट डाउनलोड करके यू कैन गो थ्रू विद द सेम एंड यू कैन हैव अ आइडिया कि एक रिपोर्ट कैसे दिखता है और कौन कौन से पैरामीटर्स पे हमें जज किया जाना चाहिए टू चूज अ करियर. जैसे मैंने बताया लर्निंग स्टाइल्स की हम बात कर रहे थे, तो दीज आर द लर्निंग स्टाइल्स जिसके बारे में हमें समझने की जरूरत है. हम लॉजिकल हैं, हम विजुअल हैं, हम कितने ज्यादा विजुअलाइज कर पाते हैं चीजों को, हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, एम आई ए नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे नेचर के बीच में रहना अच्छा लगता है, या तो आपके लिए वेटनरी डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं. सो इवन एरोनॉटिक्स, आप स्पेस शटल की बात करें, सो ईच एंड एवरीथिंग जो हमें अपने एनवायरनमेंट, अपने एटमॉस्फेयर से जोड़ती है, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. सो नोइंग योर टाइप कैन हेल्प यू टू चूज अ करियर. कैसे? जब हम बात करते हैं कि एक आर्किटेक्ट को कैसा होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकर होना चाहिए, विद अ प्लान फॉर एवरीवन. ठीक है, तो हर चीज के बारे में एक आर्किटेक्ट जो होता है वो सोचता है, तो उसे इन्वेस्टिगेटिव होना बहुत जरूरी है. देन उसके पास इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, एक थिंकर होना चाहिए, जजमेंटल होना चाहिए. सो ऑल दिस थिंग्स ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करेंगे. अलोंग विद दैट आपको कैसे हेल्प करेंगे, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए, और लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज वी आर नॉट एलियंस, हम अकेले में काम नहीं करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू वर्क विद पीपल, वी आर नॉट रोबोट्स, हम ह्यूमंस हैं. तो ह्यूमंस जब और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अपने बारे में जानना भी उतना जरूरी है जितना और लोगों को जानना जरूरी है. टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर, पहले आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में पता होना जरूरी है. लोगों के बिहेवियर को जानना, अपने बिहेवियर को जानना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना. फॉर इंस्टेंस अभी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन या ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें, बहुत से बच्चे आगे चल के बीबीए, एमबीए इन एचआर प्लान करते हैं. So what is human resource? You are interacting with humans. You are going to socialize with people. अगर आप वहां पे हेल्पर नहीं होंगे, so you won't be able to grow. लेकिन अगर हम एक इंजीनियर की बात करें, यू आर नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट उस तरह से, और आपको बहुत एम्पैथेटिक होने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू बी थिंकर, यू नीड टू बी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स उसमें होने चाहिए. तो हर तरह के करियर की अलग तरह की रिक्वायरमेंट है. तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि अगर एक इंजीनियर है उसे कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा. डेफिनेटली इफ यू आर हैविंग एन आइडिया इन योर माइंड और आप उसे पेपर पे या फिर आप लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, ऑन टेबल नहीं कर सकते हैं, तो वो आइडिया यहीं खत्म हो जाएगा. फॉर दैट व्हाट यू नीड टू कम्युनिकेट बेटर, एंड टू कम्युनिकेट बेटर यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल एंड योरसेल्फ. यू कैन आप लोगों के साथ बहुत कोऑपरेटिव हो सकते हैं, यू कैन मैनेज द सिचुएशंस बेटर, आप बहुत ही अप्रिशिएट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ज्यादा आप मैनेज कर सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ स्किल्स आर ओनली पॉसिबल, और आर द चांसेस, देयर आर चांसेस टू ग्रो इन योर लाइफ if only you are going to understand your personality and your type. So अभी हमारे सामने मेजर कंसर्न एरियाज क्या हैं इन फ्यूचर.
हमारे सामने मेजर कंसर्न एरियाज हैं, हम कोविड एरा से निकल रहे हैं, और जनरेशन इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज, जहाँ पे हमने अपने 2-2 साल 1.5 साल अपने घर में बैठ के पढ़ाई करी है। सो अभी स्ट्रगल एरियाज क्या आने वाले हैं, अभी हमें राइटिंग प्रैक्टिसेस छूट चुकी हैं, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा हम सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, हमारी अपनी रिसर्च, हमारे रीडिंग स्किल्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट फील्ड्स क्या होने वाली है वो बिल्कुल चेंज हो गया है पैटर्न, बिकॉज ईच एंड एवरी कंट्री इज प्लानिंग कि हमें इस तरह के जो वॉर्स होने वाले हैं, बायोलॉजिकल वॉर्स एक तरह से जो वायरस के थ्रू हो रहे हैं, इसकी वजह से कंट्रीज आर स्पेंडिंग सो मच ऑन द साइंस, स्पेसिफिकली उस स्ट्रीम में ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। बट उस साइंस के बनाए हुए उस प्रोजेक्ट को मार्केट तक लेके कौन जाएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ जाना होगा, टेक्नोलॉजी को एडटेक कंपनीज के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू प्लान थिंग्स, तो हमें कैसे सोचना है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी सोचना है। इंटर्नशिप्स आई वुड रिकमेंड, अभी आप लोगों के लिए परफेक्टली फाइन नहीं है, बट टू गेट एन आइडिया कि इंटर्नशिप्स क्या होती हैं, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि जब हम किसी चीज को करते हैं तभी हमारे पास एक राइट डिसीजन लेने का टाइम होता है कि मुझे इसे फ्यूचर में परस्यू करना है कि नहीं करना है, इधर दिस वे और दैट वे। वो आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उससे रिलेट नहीं करेंगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। सो इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग टू परस्यू और फाइनलाइज एनीथिंग, आपको लगता है कि मुझे उस फील्ड में जाना है, तो उससे पहले आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी इंटर्नशिप्स और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू डूज एंड डोंट्स को एक बार देखना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट वन इज एसेंशियल सॉफ्ट स्किल, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। अभी हम जैसे एक सिचुएशन में है जहाँ पे अभी 8th के बच्चे भी सोच रहे होंगे कि मैम ये वर्कशॉप हमारे लिए इट्स क्वाइट टू हैवी फॉर अस, हमें अभी इतनी जल्दी स्टार्ट करने की क्या जरूरत है, इज दिस राइट टाइम टू स्टार्ट अवर करियर प्लानिंग। मे भी हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को लगे कि नहीं दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अभी अगर डिसीजन नहीं लिया तो आगे कैसे मैनेज करेंगे। सो अगर हम बात कर ले अर्ली बर्ड्स की, सो एक छोटी सी चीज है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अर्ली बर्ड्स की अगर हम बात करें तो द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जो बर्ड सुबह सबसे पहले जाग जाता है उसे सबसे पहले वर्म मिलता है। ये हमने बचपन से एक सुनते आए हैं चीज, टू बिकम एन अर्ली बर्ड। तो सुबह जल्दी उठने से एक बर्ड को क्या फायदा होता है, सिमिलरली अगर हम अपनी बात करें, एक अर्ली राइजर की बात करें, सुबह जल्दी उठने से अगर हमें 2 घंटे ज्यादा मिलते हैं, सो आवर प्लानिंग इज टोटली स्मूथ throughout the day. So what we are going to achieve after getting 2 or 3 extra years to plan our career, हम कहाँ कहाँ बेनिफिशियल हो सकते हैं, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम एक बात करें अर्ली करियर प्लानिंग की, तो ये 2 से 3 साल आपके करियर सिलेक्शन जर्नी के अंदर ऐड करने वाला है, एंड दिस विल एनकरेज यू टू फोकस ऑन दोज बेसिक्स विच यू माइट यूज लेटर इन लाइफ। हमारे गोल्स और ज्यादा बेटर हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, वी आर गोइंग टू बी स्मार्टर। देयर आर डेफिनेटली शॉर्टकट्स जहां हम बात करते हैं अपने एम तक पहुंचने का। एक तरीका तो ये होता है कि हमारे गोल्स स्मार्ट हो जाएंगे, टाइम बेस्ड हो जाएंगे, हम मेजरेबल गोल्स बनाएंगे, स्पेसिफिक गोल्स बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि शॉर्टकट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें चांसेस गिरने के ज्यादा होते हैं। तो अगर हमने लास्ट मोमेंट पे जब डिसीजन लिए, उसके अंदर हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, और हम वहां पे जाके फॉर इंस्टेंस जो बच्चे पूरी फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद वहां पे एडमिशन लेंगे किसी पर्टिकुलर कोर्स में, और कोई एक बच्चा आता है जो मैनेजमेंट कोटा से वहां पे एडमिशन ले लेता है, डेफिनेटली दे बोथ आर गोइंग टू बी इन सेम क्लास। बट जब प्लेसमेंट होगा, जब कोर्स करिकुलम को पढ़ाया जाएगा, हु इज गोइंग टू सर्वाइव, हु इज गोइंग टू ग्रो, जिसके फाउंडेशंस स्ट्रांग होंगे, उसके नीचे गिरने के चांसेस कम होंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज उसके पास रिग्रेट नहीं होगा, सेकंड थॉट नहीं होगा। लेकिन जो शॉर्टकट मार के आया है उसके पास बेसिक प्रॉब्लम क्या होने वाला है, एक तो उसने ऑलरेडी अपना एक मनी स्पेंड कर दिया उसमें बहुत ज्यादा, और वो बच्चा क्लियर नहीं है कि मुझे ये ही करना है, बिकॉज तभी उसके फाउंडेशंस क्लियर नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे गोल्स स्मार्ट नहीं स्मार्टर होने चाहिए फॉर दैट मैटर।
Similarly, students get a fair amount of time for in-depth research and planning. अब हम जब in-depth research and planning की बात करते हैं, for instance, अगर आप में से ही दो बच्चों की मैं एग्जांपल लूं, आप 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, फॉर इंस्टेंस ग्रेड 8 के अंदर स्टूडेंट ए है एंड स्टूडेंट बी है, मे बी आप दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक जैसे हो, आपको साइंस एक्सपेरिमेंट अच्छे लगते हो, बट ए स्टूडेंट ने क्या किया, उसने अर्ली करियर प्लानिंग करी, उसने अपने मान लीजिए रोबोटिक्स में उसको इंटरेस्ट है, एंड देन उसको पेरेंट्स ने उसके साथ इनिशिएटिव लिया, तो उसने धीरे धीरे पार्टिसिपेट किया साइंस क्विजेस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, ओलंपियाड्स के अंदर, सब कुछ प्लानिंग किया, एंड यू आर जस्ट आप ये सुबह सोचिए कि हमारे स्कूल के अंदर 100 या 200 बच्चे हैं, उन्हीं से मेरा कंपटीशन है। आई एम सॉरी टू से बेटा, लेकिन जब आप एंट्रेंस देने के लिए जाएंगे, यू आर गोइंग टू डील विद द स्टूडेंट, वहां पे जो पैन इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटर्स आए होंगे, जिनके फाउंडेशंस आपसे बेहतर हो सकते हैं, तो आप उनसे आगे एक स्टेप आगे कैसे जाएंगे? वो तभी जाएंगे आप जब आपके फाउंडेशंस क्लियर होंगे, एक इन डेप्थ रिसर्च एंड प्लानिंग आपने कर रखी होगी। सिमिलरली, अगर आप ज्यादा फोकस्ड हैं, आपने अच्छी कोचिंग स्टार्ट कर दी, आपने अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, टिल द टाइम यू आर गोइंग टू बी इन 10th स्टैंडर्ड, आपको अपने स्ट्रीम के बारे में क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा। अब फॉर इंस्टेंस अगर स्टूडेंट ए ने साइंस क्विजेज लिए हैं, सेमिनार्स लिए हैं, ओलंपियाड लिए हैं, पेरेंट्स ने प्रॉपर फाउंडेशन में उसको हेल्प किया है, टिल द 10th उसके पास दैट चाइल्ड इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड एंड ऑफ कोर्स अहेड। लेकिन यही अगर हम स्टूडेंट नंबर बी की बात करें, तो उसने एक स्लो प्लान बनाया, उसने एक्चुअली कुछ पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं दिखाया, और उसको भी लगता था मुझे साइंस एक्सपेरिमेंट अच्छे लगते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द टाइम वो 11th में बच्चे ने फॉर इंस्टेंस 10th में 11th में साइंस ले भी लिया, बट एट दैट टाइम कहाँ स्ट्रगल होगा? ए स्टूडेंट के फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा ग्रो करेगा, बी स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करता रहेगा। और जब आप आउटसाइड द स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जाएंगे, सो यू आर गोइंग टू कम्पीट विद स्टूडेंट्स जिनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे, तो वहां हम रिलेट कर पाते हैं कि हमारे एंट्रेंस क्लियर नहीं होते हैं, और फिर बच्चे डिसअपॉइंट होते हैं दैट वी हैव स्पेंट 2 years। आप ये देखें, अगर आप फाउंडेशन में आप 8 से लेकर 12 तक आप एक सब्जेक्ट के ऊपर उसके फाउंडेशन में एफर्ट डाल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली, जिस बच्चे ने सिर्फ 11th एंड 12th में प्रैक्टिस किया है, ये बेटा फिटजी है, आप अगर और भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूट, विद्या मंदिर वगैरह बच्चे प्लान करते हैं, तो इन द लास्ट क्रैश कोर्स करना, 3 months में करना, 1 year के अंदर करना, वो एक रैट रेस है। यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रैट रेस। आप अपने दिमाग पे कितना प्रेशर डालेंगे? एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन ब्रेन कितना ले सकता है? आप उस 1 साल में वो लेने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चा दूसरे आपके सामने पिछले 4 साल से अपने दिमाग में स्लो एंड स्टडी पेस से चला रहा है। तो वो खरगोश और उसकी कहानी एक दोहराने वाली, कछुए वाली हो जाएगी कि वो धीरे 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 ग्रो करेगा, वो एकदम से ग्रो करेगा, और जहां आपने बीच में क्रैश कोर्स में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई तबीयत बिगड़ गई, तो वो आप कैसे पिछड़ जाते हैं उस चीज से। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लानिंग हमें इन डेप्थ रिसर्च का टाइम देती है। Similarly, in case there are additional skills to be acquired or preparation to be done for particular career, for example, अगर आपको एंट्रेंस जैसे मैंने बताया आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप प्लान्ड वे में चलते हैं। अगर आप मान लीजिए फ्यूचर में जर्नलिस्ट बनने की सोचते हैं, तो जर्नलिस्ट बनने के लिए यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन आपने उसके ऊपर तो एफर्ट ही नहीं डाला, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स अभी एनहांस करने का टाइम है। अगर आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, तो 2D ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स, उसके लिए स्केचेस बनाने की प्रैक्टिस आज करने की जरूरत है, जब हमारे हाथ आज बन रहे हैं। अगर वो हमने 11th-12th के बाद प्लान किया, तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, और वो उतने कम टाइम में जब आपकी ग्रैबिंग कम होगी, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिग्रेट कि मुझे ये 2 साल पहले कर लेना चाहिए था। तो इस तरह की कुछ अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना, इन चीजों के बारे में हम उस समय नहीं सोचते हैं। सिमिलरली, अगर हम बात करें ट्रायल एंड एरर की, कुछ कुछ चीजें ट्राई करी, उनमें से मुझे जो क्लिक किया उसको आगे बढ़ना। अब जो बच्चा 11th या 12th के बाद प्लान करता है या करियर गाइडेंस के लिए हमारे पास आता है ना बेटा, somehow we are feeling so sorry for that child कि हम उसके प्रोफाइल के लिए काम नहीं कर सकते, हम उसको ट्रायल एंड एरर वाले ऑप्शन में नहीं डाल सकते कि बेटा आप इसमें इंटर्नशिप करके देखो, या आप इसका एक ऑनलाइन कोर्स करके देखो, मे बी दिस प्रोफाइल और दिस करियर क्लस्टर इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, बिकॉज अब आपके पास
एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है। रीजन बीइंग कि अब आपको डिसीजन लेना है इधर दिस कॉलेज और दैट कॉलेज, इधर दिस कोर्स और दैट कोर्स। तो हमारे पास सिचुएशंस में क्या हो जाता है, रेंडमली हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन विद द गेस वर्क। सो व्हाट वी आर गोइंग टू अवॉइड, अगर हम अर्ली करियर प्लानिंग करते हैं तो हम रेंडम डिसीजंस को अवॉइड कर सकते हैं, और हम अपने लिए छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज करके या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके हम अपने लिए एक ट्रायल एंड एरर के ऑप्शन से निकल सकते हैं, एंड वी कैन मेक अ बेटर चॉइस फॉर अवर करियर। It can help build focus and ambition by setting clear goals to aspire towards. अभी यूपीएससी के लिए जो बच्चे एस्पायर करते हैं, तो जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत फोकसली पढ़ते हैं, 6th ऑनवर्ड ही पढ़ते हैं, तो आप देखिए बहुत से स्कूल्स हैं जहां एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। या अगर हमें पता है कि मेरा फ्यूचर एस्पिरेशन यूपीएससी ही है, तो उस मोमेंट पे क्या होगा, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं 6 to 12 की, वो आपके सिलेबस में आती है। तो उस मोमेंट पे जाके आप सारी क्लासेस की बुक्स को कैसे रीड आउट करेंगे? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, डेफिनेटली अगर प्राइवेट पब्लिशर्स भी हैं तो वो बुक्स के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही डालते हैं, सीबीएसई बेस्ड सिलेबस डालते हैं, बट आपने 6th को अवॉइड कर दिया, 7th को अवॉइड कर दिया, आज आपने पढ़ा भूल गए, 8th को अवॉइड कर दिया, 9th को भी थोड़ा ब्लर्ड हो गया। बट जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, देन अगेन यू आर गोइंग टू हैव दैट आइडिया, अभी फिर पढ़ना पड़ेगा उसको। सो इफ यू आर हैविंग अ फोकस्ड एम कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, सो यू विल बी हैविंग अ क्लियर आइडिया, और आपका टाइम बचेगा, और आप अभी से जो एफर्ट डाल रहे हैं अपनी बुक रीडिंग के लिए, दिस बुक रीडिंग हैबिट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन फ्यूचर। तो इस तरह से हमारे जो एम होते हैं, फ्यूचर एम होते हैं, हमारा फ्यूचर स्ट्रगल बचाते हैं, और हमें आने वाले टाइम में जो स्ट्रगल करना पड़ता है बाय रीडिंग ऑल दो सिलेबस एंड बुक्स वंस अगेन, उस टाइम को हमारे सेव करता है, एंड हमें हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, विच इज अवर नेक्स्ट स्लाइड इज गोइंग टू से कि इट मिनिमाइजेस डिस्ट्रैक्शन सिंस अ फोकस्ड चाइल्ड नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर एंड वर्क्स टुवर्ड्स इट। हम उस चीज पे एफर्ट लगाते हैं जहां पे मुझे पता है कि मेरे स्किल्स को एनहांस करना है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने एग्जांपल आपको दिया जर्नलिज्म का, तो अगर मुझे पता है कि मुझे एक अच्छा न्यूज रीडर बनना है, और मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी, अपनी अटायर, इन सब चीजों के ऊपर अभी से फोकस कर रही हूँ, सो इससे क्या होगा कि मुझे बाकी की जो सारी चीजें हैं जो एक गेस वर्क के अंदर हम कंसीडर करते हैं, उससे हम बच जाएंगे, हमारा टाइम सेव होगा, और हम जगह जगह डाइवर्ट नहीं होंगे। जो एक 9th 10th के बाद एक 11th में कंफ्यूजन, 10th में कंफ्यूजन आता है कि मैम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है, सो वो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो रिड्यूस होगा। 12th के बाद कॉमर्स में बच्चे कई बार पूछते हैं या साइंस में पूछते हैं कि मैम आई एम स्टिल कंफ्यूज कि मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना है, मैंने मेडिकल तो ले लिया। सो हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? कि एक बच्चा, even I do remember a child, she has scored 93% in PCB के अंदर उसने लिया, and she called me, मैम मुझे तो लगता है मैं मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकती हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन। सो बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है, एडमिशन उसको मिल जाएगा, बट जो 11th 12th में उसने मिस किया कॉमर्स ना लेकर, जब वो एमबीए के लिए, बीबीए के लिए प्लान कर रही है और वो वहां जाएगी, तो डेफिनेटली जो जिन बच्चों के साथ वो compete करेगी उनको वो स्किल्स बेहतर आते होंगे, उसके बारे में नॉलेज बेहतर होगी, सो वहां पे उसका स्ट्रगल एरिया बढ़ जाएगा। डेफिनेटली इफ यू आर अकेडमिकली गुड, इफ यू आर हैविंग अ पोटेंशियल, यू कैन पिक अप, आप में पोटेंशियल है, यू आर गोइंग टू पिक अप, लेकिन वो टाइम आप सेव कर सकते थे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प विद दिस थिंग। सो हाउ टू स्टार्ट करियर प्लानिंग, बेसिक आइडिया आपकी एज के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि करियर प्लानिंग करना ही कैसे है, पर्टिकुलरली फॉर 8th and 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो गो बियॉन्ड देयर इंटरेस्ट एंड पैशन, अपने पैशन और इंटरेस्ट से बाहर निकल के भी देखें, अपने लिए एक बंद कुकून की तरह नहीं हो जाइए कि म्यूजिक मुझे पसंद है, सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग गुड इन म्यूजिक। जैसे मैंने बताया, ट्रायल एंड एरर के एक्सपेरिमेंट को करिए, कुछ ऐसी चीजें सोचिए जो आपको लगता है मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है। आई एम अगेन गिविंग यू एन एग्जांपल्स अगेन एंड अगेन, रीजन बीइंग कि आप उससे रिलेट कर पाएंगे। लास्ट वीक ओनली आई जस्ट हैव एन इंटरेक्शन विद अ गर्ल, शी कॉल्ड मी कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि शी हैज डन हर डिप्लोमा फ्रॉम पर्ल एकेडमी, एंड उसके बाद सडनली शी रियलाइज कि नहीं मुझे डाइटिशियन बनना है, एंड शी डन दैट।
बट ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज उनके पेरेंट्स का फर्नीचर का शॉप था एंड द चाइल्ड शी हैज टू वर्क विद द फादर, और उसने 10 से 15 दिन दिवाली टाइम पे अपने पेरेंट्स के साथ काम किया एंड सडनली शी रियलाइज, मैम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कलर पैलेट्स की, डिजाइन की, लोगों के टेस्ट और इंटरेस्ट को पकड़ने की समझ है. सो आई हैव टोल्ड हर, दिस इज व्हाट यू हैव मिस्ड. आपको अगर इंटर्नशिप आप करते या आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते आफ्टर डूइंग योर डिप्लोमा फ्रॉम पर्ल, मे बी यू कैन हैव दैट आइडिया कि मुझे ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है. आपने क्लियर रिजेक्शन दिया उसको आफ्टर डूइंग दैट डिप्लोमा. बिकॉज हम जब भी कोई चीज करते हैं ना, उसके पीछे कोई रीजन होता है, तो उसको डायरेक्टली डिसोन नहीं करना चाहिए. अपने इंटरेस्ट और पैशन से बाहर भी निकल के देखने की जरूरत है. एक्सप्लोर द लर्निंग, वर्क एंड फ्यूचर प्रोफेशनल ऑप्शंस. जैसे मैंने बताया हम कोविड एरा में हैं, तो अभी फ्यूचर को लेके बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हो गई हैं. अगर हम बात करें कि एनालिसिस ऑफ मार्केट, फ्यूचर ट्रेंड्स, अपने आने वाली जो ग्लोबल सिनेरियो में जो चेंजेस आ रहे हैं, उस लेवल पे सोचने की जरूरत है. प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये सोच के वी शुड नॉट टेक डिसीजन फॉर अवर करियर. बिकॉज जिन बच्चे ने 11th एंड 12th में स्ट्रीम लिया होगा आज से 2-3 साल पहले, और सडनली ये तो जो कोविड का एरा आया, बट डेफिनेटली ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच थिंग इन फ्यूचर. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर हम देखें, जिन लोगों ने अपनी नॉलेज के लिए आज से 3 से 4 साल पहले आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए, किस तरह की रिसर्च दुनिया में चल रही है, तो ये न्यूज में आज से 3-4 साल पहले आने लग गया था दैट चाइना इज वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ जिनके बारे में अभी हम सुनते भी हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बातें उठी कि ये पहले से ही कुछ इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे. तो जो बच्चे अवेयर थे, जिनके पेरेंट्स अवेयर थे, जहां पे ये बात होने लगी थी घरों में, वहां बच्चों ने डिसीजन फ्यूचरिस्टिक होकर देखे लिए. अभी भी अगर हम इस सिचुएशन को अवॉइड कर दें, जैसे मैंने बताया आपको कि पीसीबी का बच्चा अगर जाता है तो डॉक्टर बनने की बजाय आई वुड रिकमेंड कि आप वायरोलॉजी में जाएं, बिकॉज वायरस की स्टडी के ऊपर ईच एंड एवरी कंट्री इज स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी. सो उसमें करियर फ्यूचर ऑप्शंस बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके लिए यू नीड टू हैव इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स. अगर आप बहुत इन्वेस्टिगेटिव नहीं है, लॉजिकल नहीं है, थिंकर नहीं है, जजमेंटल नहीं है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू रिलेट विद दैट. तो हमें ये चीजें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है. और जब हम ट्रायल एंड रन के ऑप्शन से बाहर निकलते हैं, तो वी नीड टू शॉर्ट लिस्ट फ्यू ऑप्शंस, ताकि हम धीरे 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 10th तक आते आते, 12th तक आते आते हम अपनी और कुछ चीजों को लेके, ऑफ बीट करियर्स को लेकर वी नीड टू बी वेरी ओपन माइंडेड. बहुत रिजिड नहीं हो जाना चाहिए अपनी अप्रोच को लेकर कि आज हमने ये सोच लिया है, इसी को ही आगे बढ़ाना है. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अवर पाथ. 10th में अगर गलत डिसीजन आपसे स्ट्रीम सिलेक्शन में हो गया है, तो उसे कॉलेज में मत दोहराइए. डोंट बी सो एडमेंट कि मैंने अब ये 2 साल इस पे लगाए हैं तो मुझे आगे चल के उस पे जाना है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें थोड़ा सा ओपन होने की जरूरत है. अपने आप को इवेल्युएट करें. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का टू एनालाइज अवर ओन सेल्फ. जैसे मैंने बताया, वी आर यूनिक पर्सनालिटीज. तो अपने आप को इवेल्युएट करें. इफ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट. इफ यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, डू इट. इफ यू वांट अ प्रोफेशनल हेल्प, देन गो फॉर इट. नेक्स्ट इज अपनी हेल्प कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं. अपने मेंटर्स, टीचर्स, उन सबको हम इसके अंदर कोलैबोरेट करें. क्योंकि आप जो अभी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल इसके ऊपर लगाएंगे, योर नेक्स्ट 30-40 इयर्स, 50 इयर्स में बी आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग. तो अभी मत स्ट्रगल करिए इस चीज के लिए कि मैं उससे हेल्प क्यों लूं, मैं हमसे क्यों पूछूं, पेरेंट्स के साथ इस बारे में बात क्यों करूं. बिकॉज हम एक छोटा सा एक बात बताऊं बेटा, हम लोग एक घर भी लेते हैं, एक कार भी लेते हैं ना, तो हम 10 लोगों से पूछते हैं किसकी माइलेज ज्यादा है, कौन सा कलर अच्छा लगेगा. बट जब हम करियर चूज करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि आज मेरा रिजल्ट आया एंड टुमारो आई जस्ट नीड टू मेक अ कॉल कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना है. हमारी लाइफ, हमारा करियर का इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना एक कार इंपॉर्टेंस रखती है. हम घर के लिए एक फ्रिज लेते हैं, हम एक छोटे छोटे डिसीजंस की बात कर रही हूँ मैं आपसे, हम कैसे सब लोगों से फीडबैक लेते हैं. व्हाई नॉट फॉर दिस. एंड व्हाई नॉट अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट बॉटम. अगर हमें दिख रहा हो ना पानी में से धुआं आ रहा है, तो वी आर वेरी मच क्लियर कि ये ठंडा पानी है कि गर्म पानी, दूर से पता चलता है. पास आके फिर भी देखना पड़ता है
कि ये धुआं जो आ रहा है ये बहुत गर्म पानी का है या बहुत ठंडे पानी का है। और अगर धुआं नहीं होता है उसके अंदर एंड तो हमें उसे टच करके चेक करना पड़ता है कि पानी गर्म है कि ठंडा है। सो हम अपने करियर को बिना ट्रायल रन किए, बिना छोटे छोटे इंटर्नशिप्स किए, बिना उनके डूज एंड डोंट्स को जाने कैसे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। वी आर नॉट टेस्टिंग मशीन्स। हम ऐसे एक्सपेरिमेंट हम पे किया जाए, हम वो लोग नहीं है। वी नीड टू बी एक्यूरेट एंड फॉर दैट वी नीड टू टेक रिस्क, वी नीड टू टेस्ट अवरसेल्फ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे कर सकते हैं। we need to talk to the professionals of those fields जिसमें हम जाना चाहते हैं। उनसे समझने की जरूरत है कि हम अगर इस प्रोफेशन में आगे जाना चाहते हैं, what kind of future plans or the future growth of that industry may be। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड सो मच क्योंकि हम ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी बात कर चुके हैं कि किसी भी करियर के अंदर आपको ग्रोथ चाहिए, यू नीड टू हैव सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड टू दैट करियर। उसको मैं शॉर्ट में आपके साथ लेती हूँ। अगर हम बात करें जो बेहतरीन रिक्रूटर्स हैं और जो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में डिमांड जिनकी रहती है, अगर हम लिंक्डइन को देखें, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर दोज करियर क्लस्टर, जो भी आप जिसमें जाना चाहते हैं करियर्स में। तो कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, टीम वर्क, पंक्चुअलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल स्किल, क्रिएटिविटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, ये सब चीजें ऐसी रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हर करियर के लिए ही चाहिए होते हैं। सो फॉर दैट मैटर, अगर अभी से हम अपने आप को अपस्किल करना नहीं शुरू करेंगे तो हमारी धीरे 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 हमारी बॉडी उस तरह की नहीं बन पाती है एंड इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू स्ट्रगल। जैसे अगर पंक्चुअलिटी है, वो आज अगर हमने अडेप्ट नहीं करी, इन फ्यू इयर्स हम अपने आप से ही स्ट्रगल करेंगे। तो ऑन टाइम पहुंचना ये हमारी एक हैबिट होनी चाहिए और अभी से डेवलप करेंगे तभी वो हमारे लिए कंफर्ट जोन बना देगी। क्योंकि शुरू का कुछ टाइम हमें मे भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट इन फ्यूचर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसको कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, देयर आर ऑलवेज इवॉल्विंग, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मेथोडोलॉजीज होती हैं, कैसे उसमें ग्रो कर सकते हैं, इतने स्किल्स को अपस्किल कैसे कर सकते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर काम करना जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए यू नीड टू वर्क फ्रॉम टुडे ओनली। क्योंकि हमारी जो पर्सनल ग्रोथ होती है और जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है ये टोटली डिपेंड करती है हमारे सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। अकेडमिकली यू ऑल आर कहीं ना कहीं इक्वल लेवल पे आप में से 5, 10, 20, 50 बच्चे होंगे, बट व्हाट इज गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट आइडिया और पर्सपेक्टिव, कहाँ आके आपको लगता है कि मैं उससे थोड़ा बेहतरीन हूँ, जब एक बच्चे की पंक्चुअलिटी, उसकी रेगुलरिटी, उसका काम, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। सो वहां पर हम टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एज के अंदर, इसे समझना कि अपने टॉप स्किल्स को अगर हम देखें, किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, ये आपके करियर तक आपके साथ चलेगा और आज भी चलेगा। जैसे हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कल इस सब्जेक्ट का एग्जाम है तो आज इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़े, तो हम उस सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट को उस दिन नहीं पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम वर्क स्पेस में हैं, मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, किस चीज को मुझे स्केड्यूल करके चलना है, मुझे टू डू लिस्ट मेंटेन करना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे उठना है, कब लोगों से इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करती हैं। इवन तो कभी कभी हम प्रॉब्लम में इतने फंस जाते हैं और बाद में रियलाइज होता है, ओ अगर मैंने उससे हेल्प ली होती या बात की होती तो आई वुड हैव सेव्ड सो मच टाइम। तो कई बार टीचर्स कहती हैं, आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा आपने। तो डेफिनेटली योर टीचर्स एंड यू कैन रिलेट टू दिस थिंग, आप गो थ्रू करते हैं डेली, बट वी आर नॉट फोकस्ड फॉर दैट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपके जो हार्ड स्किल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप एक लेवल पे 2 लोग खड़े हैं हार्ड स्किल लेकर, तो सॉफ्ट स्किल इज द ओनली थिंग जो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी और आपको एक अपर एज देगा। सो लास्ट थिंग, अपने ड्रीम करियर के बारे में अगर आप सोचते हैं, एंड जो करियर लाइब्रेरी आपको जो भी उर्वी मैम एक्सप्लेन करेंगी, सो आपके लिए कौन कौन से एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है जब हम किसी भी करियर के बारे में प्लान करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू कवर, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स क्या रहने वाले हैं, करियर एंट्री पाथवेज क्या होने वाले हैं, हमारे एजुकेशनल रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर करियर के लिए क्या है, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर कब है और कहाँ है,
कॉम्पिटेंसीज क्या क्या रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने बताया कि हमारी लर्निंग स्टाइल इसमें बहुत डिपेंड करते हैं कि हमारे लिए कॉम्पिटेंसीज क्या चाहिए। बीच में कर दूंगी, आप नहीं करेंगे, वो मैं होस्ट दे दूंगी आपको। सो अर्निंग हमारी किसके अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, जो अभी तक हम अपने फाउंडेशन बनाते आए हैं, हमने अपने करियर ग्रोथ के लिए बनाते आए हैं। हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। मेरी लाइफ का एम क्या है, पर्पस क्या है, वैल्यूज क्या है, करियर मोटिवेटर क्या है, एम आई इंटरेस्टेड और इंक्लिनेशन मेरा जो है वो कंट्री की तरफ ज्यादा है। I want to serve my country, I want to serve my society, I want to serve myself, I want financial stability। ये सारी चीजें हमें एक बार गो थ्रू करनी चाहिए, तभी हमारे पास ड्रॉप आउट जो बच्चे होते हैं या मेंटल हेल्थ से चैलेंज जिन बच्चों को होता है फ्यूचर में, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो पाएगा। वो तभी हो पाएगा जब हम इन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, कौन से बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम में उस समय बीट नहीं कर पाते हैं और बच्चों को, वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सो 8th and 9th ग्रेडर्स, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, हमारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें जो एक स्टेप अहेड रखेगा उन बच्चों से जो 11th and 12th में कोचिंग लेंगे या आफ्टर 9th 10th कोचिंग लेंगे, उन बच्चों से एक स्टेप अहेड रखेगा हमारा फाउंडेशन, हमारे स्किल्स। तो उन्हीं स्किल्स को अभी से पॉलिश करना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट अगर हमें पता चल जाए, क्या सिलेबस रहता है, किस तरह की चीजें हमें फ्यूचर में कवर करनी होंगी, व्हाट काइंड ऑफ टाइम प्लानिंग वी हैव टू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉलेजेस वी नीड टू प्लान। अगर कोई स्पेसिफिक कॉलेज है जिसके अंदर यू नीड टू हैव बजट इशू आ रहा है, तो वहां से हमें कौन बचा सकता है, स्कॉलरशिप एग्जाम बचा सकता है। And if you're not aware about the college and you're not aware about the scholarship exam, who is going to help you? So to get that help, you need to understand what kind of scholarships are needed to get entry into that college. तो वो अगर आज आप सोचने लगेंगे ना बेटा, then only you will be able to complete the same. So afterwards I would like to request Urvi, so please मैं आपको sharing rights दे रही हूँ definitely. Sure, ma'am. All right everyone, so this is our career library। ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने डॉक्टर्स को देखा है, इंजीनियर्स को देखा है, या आपने किसी रिलेटिव को देखा जो अभी डॉक्टर है, इंजीनियर है या किसी और अदर प्रोफेशन में है, और आपको लगता है कि आपको बड़े होकर या फिर आफ्टर योर स्कूल ये परस्यू करना है। बट उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, स्किल्स होती है, जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, इफ यू हैव एनी आइडिया कि आपको अभी क्या करना है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फैशन डिजाइनिंग या फिर लेट्स टेक द बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस एनालिसिस करना है, बिजनेस एनालिस्टिक करना है, तो उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दैट इज करियर क्या है, वर्क नेचर, व्हाट विल बी द की स्किल्स रिक्वायरमेंट, ऑक्यूपेशन, करियर एनालिसिस, करियर वीडियोस एंड नेविगेशन। आफ्टर दैट उसमें आपको कौन कौन से स्किल्स, बेसिकली गो थ्रू विद द स्किल्स की कौन कौन से स्किल्स आपको रिक्वायरमेंट होगी। एंड अगर आप improve करना चाहते हैं अपनी skills, so you can go and contact us for the same, and the same link you can get on our just get on chat box the link जिसके थ्रू आप ये करियर लाइब्रेरी ले सकते हैं। अदरवाइज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू विद योर मैनेजमेंट टीम, आप अपने टीचर से ये लिंक ले सकते हैं। इसके अलावा आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू द करियर लाइब्रेरी, द गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपने जितने भी करियर डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको पुट अप होता है, यू कैन आस्क नाउ। अदरवाइज आप सेपरेटली मैम से पूछ सकते हैं, जो मोनिका मैम के पास एक्सेस होगा। ऑलराइट,
चैट बॉक्स में आपको तीनों चारों लिंक्स मिल गए हैं करियर लाइब्रेरी, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी एंड यू कैन गेट द गूगल फॉर्म लिंक, जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स एंड जो भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. ओवर टू यू मैम. Thank you. Thanks a lot. I believe I'm able to see all the students. Just a second. Thank you. Thank you, Monica ma'am. Over to you, Niti ma'am. Thank you, Ritu ma'am. Thank you, Monica ma'am. Thank you, Paramhans Vidyapeeth, for once again, giving such a session. Seriously, the information given, I think if students have taken a note of it, it is really going to help them a lot. Because you especially focus on the early planning phases, the soft skills, what is required. So I think the students got a very good in-depth information of the various things which are required. So I think now they are in a better position to understand where they stand, what are their skills they can identify, and I hope it will be very beneficial for them. And I'm also so thankful, ma'am, for for you to provide the links for the free career this library. It's really a great job done by you people. I must applaud that. Last time also when you shared about this, it was a real, I informed the students also that please make use of it. It's a really, your job has been done by them to provide you a concise and precise information in detail. So that was really, so much. I'm so grateful to you to take out time and provide so much information for our school. From JIS staff, students, to ma'am, on their behalf, I would thank you. And I will say I look forward to more of the sessions if need be. And I hope that students will make use of this session. They have benefited. I also would like to thank the parents who are with us today, the students who have taken out time and they have utilized this opportunity. So thank you so much, ma'am. And thank you, Ritu ma'am, for once again organizing such a wonderful. My pleasure, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you, Monica ma'am. Thank you. Thanks a lot, ma'am. I do really appreciate all the students who are listening. They were very patient, and still, if they do have any doubts, they can connect with us through Google Form, or they can ask us on this platform as well. We don't have any issues. But as mentioned in the last workshop also, because कई बार होता यह है कि because you are into an open space or virtual space, you are not very much comfortable to discuss your queries. So that's why we have given the Google link, and maybe after their feedback, we are going to, revert to them with their issues or help them with the problem. Thank you, Niti ma'am, for appreciation, all the appreciation, and Ritu ma'am for all the guidance and support. And I really thanks all the parents who are present out there. And ma'am, Google, ये जो हमारा career library है, that इसको हम Pandora box or what should I say? कि सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको एक फोकस्ड इंफॉर्मेशन देता है. आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं. दिस वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस करियर लाइब्रेरी कि गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन मिलता है और वो और ज्यादा कंफ्यूजन हमारे लिए बढ़ जाता है. एंड वी आर नॉट इनटू अ स्टेज कि जहां पे 8th एंड 9th ग्रेडर स्पेसिफिकली इवन प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट एरा में रहते हैं एंड वी डू हैव सो मेनी थिंग्स ऑन गूगल. We don't want to be, अगर हम गेस वर्क एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं तो गेस वर्क एलिमिनेशन यहीं से स्टार्ट होगा जब हमें कॉन्सेंट्रेटेड इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होगा. एंड आई डू अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स बाय द स्कूल. Thanks a lot to all the teachers, management, and students and parents specifically. Thank you, ma'am. Students, if you have, raise your hand if you have any query, and if you want any query with if you want to satisfied with any query, or directly through Google Form, you can relate to ma'am. Yeah. Yes, I will also like to Thank you, add ma'am. all students can get back to us. You can contact Ritu ma'am, you can contact me, and you can take the advantage of their library, and please get in touch. Now it's the right time. They have given you so much information. I hope now you get to know that you are at the correct place. You are in the correct place at the correct time. So please take benefit of it. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks.